Hello, Namaste to all. Welcome to our channel, Brain Booster, Fueling Future Talents. So, today we will be doing a poem which is The Raven and the Fox. So, this is again from the same Unit 1, Fable and the Folk Tales from your book Purvi. And this poem, there is a means bird. The raven is a bird which is being mentioned here, and the fox, you all have already read some or the other story of the fox, right? So we will cover this today in this video. Okay, to start with, already we have done the three terms, which is the Purvi, fables, and folk tales. You are aware about this, and you may read out these lines which are mentioned, and you may watch the previous video to know about this. And the new term is here raven. So raven is a bird which is similar to a crow, but it is little bigger in size. Okay, दिखने में बिल्कुल कौवे की तरह ही होता है, black color and body everything, but it is little bigger. I'll also provide the image. See this one. This is the raven. So it is similar to the crow. And then we have in this poem the cunning fox. Yes, so he is giving his gyan. The cunning fox is giving the gyan to the raven regarding this. So we will read that what the fox wants to say to the raven, right? So let's have the overview of the poem from the text, The Raven and the Fox. Mr. Raven uh, was perched upon a limb, right? So this is like this way. We will read stanza by stanza and then I'll explain you the meaning of this. Every single line I'll just explain you. So to begin with the first stanza, and what is a stanza? Similar to the paragraph, like if we are reading out any chapter or story, there we have paragraph. Okay, it may be lengthy or it may be small, and it then means the no fixed lines are there in that. And here in the poem also we are having we don't say them paragraph, but it is known as stanza. So Mr. Raven was perched upon a limb, and Renard the fox looked up at him. Okay, why he looked up at him? Because obviously this fox was sitting down on the ground, and the raven was, as it is a bird, so it was sitting on the branch of a tree. Okay, perched means sitting on that branch of a tree. Okay, perching means to sit upon something. So this is the scene that Raven is sitting, and then the Renard, who is this? The fox. He is looking up at him. For the Raven held in his great big beak. है ना? Because why he was looking up at him? Due to because he very cunningly wanted something from him, and he wanted, and he was sure that cunningly by saying something to this raven, he will just get what he wants. So the raven held his big beak, great big beak. Okay, so the raven was holding a means food, morsel of a morsel the fox would go to for far to seek a morsel the fox would go far to seek. So raven held the great big in his great big beak. So as the big is little bigger, in that he was holding a morsel. What is a morsel? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निवाला बोलते हैं ना, या टुकड़ा in the piece. Okay, means a piece of food, small piece of a food. So the tough words which are already provided to you, you may read along with the poem part so that you are aware about these words. And what is limb? It is a branch of a tree. And as explained to you, morsel is a small piece of food.
ओके, तो बेसिकली हम निवाले को भी मॉर्सल बोलते हैं, या फिर खाने का जो छोटा टुकड़ा होता है, दैट इज नोन एज द मॉर्सल. सो ही वॉज अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. है ना, एक कितना बड़ा उसके पास पीस था फूड का, जितना कि सीक का क्या मतलब हुआ, टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग. अगर अगर रेवन उसको, अगर उसको रेनार्ड को, फॉक्स को कुछ खाना हो तो उसको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, है ना, उस निवाले के लिए, उस रोटी के टुकड़े के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँच के वो ये कुछ मतलब उसको बड़ी मुश्किल से मिलेगा. बट अब उसको लालच आ रहा है कि बड़ी आसानी से मुझे तो खाना मिल रहा है, तो क्यों ना मैं क्या ट्रिक चलूँ. सो ही इज़ थिंकिंग. Okay, so this is your first stanza, and these are your tough words. As you can see that at the end of every line, yes, like limb, hem, beak, seek. So the sound is similar. So these are known as your rhyming words. And according to this only, according to the rhyming word, we decide the rhyme scheme of a poem also. Rhyme scheme, we name it. Like the first word is limb. To be silent here, you pronounce it like limb. Limb, hem. So it is same sound. Then beak, seek. Again same sound. So limb and hem are rhyming, so it will be AA. Then beak and seek is rhyming, so it will be BB. So this is going to be your rhyme scheme of the poem, and these are the rhyming words. Further, moving to the stanza second of the poem. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. So said the fox means fox ने क्या बोला? In admiring tones, बड़ा उसको admire करते हुए ना, admiring tone में उसने क्या बोला? That my words, ओ मेरे शब्दों को सुनो आप. सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, क्या बहुत ही हैंडसम बर्ड हो. ओके, सो अब वो क्या कर रहा है, बटरिंग कर रहा है उसकी, है ना, तारीफें कर रहा है, क्योंकि उसको लालच है मन में, उसको वो रोटी चाहिए जो रेवन ने पकड़ी हुई है बीक में, राइट. सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. सच फेदर्स, कि आपके ऐसे फेदर्स हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, जबकि क्या है, फेदर जो है रेवन का, वो बस ब्लैक कलर की है. मीन्स इट इज़ नॉट एनी कलरफुल दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव, but it is just the wings or the feathers of this raven bird are simple black in color. Still he is buttering. Okay, Renard is buttering Raven that if you would only sing, अगर आप गा भी दोगे ना तो क्या होगा, the bird of this woods, the bird of this woods would call you किंग. तो वुड्स क्या है यहाँ पे, स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ऊपर जंगल होता है, बहुत घना होता है, पर जहाँ आप खड़े हो तो कुछ दूर तक, क्योंकि पेड़ तो बहुत ऊंचाई पे जाके है, तो नीचे नीचे आपको लकड़ियाँ ही दिखती हैं, तो इस तरह से पेड़ की जो डाल वगैरह वो है ना, ब्रांचेस, और तो वहाँ बीच में उनको स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्री, एक जैसे पेड़ होते हैं वहाँ पे, है ना. वुड्स क्या है, मतलब एक ही साइज के मोस्टली ट्रीज आर देयर. Now in this stanza, again coming to the rhyming words. Okay, word, bird. Okay, mark my word. Then bird, so this is rhyming, and then sing and king is rhyming, so it will be again CC and DD. So this is your rhyme scheme going on, and these are the rhyming words. Moving to the third stanza. The raven who did not see the joke, है ना, the raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. Okay, so the raven who did not see the joke means he was not able to understand. क्या होता है, आपकी कोई तारीफ करता है, कुछ लोग कैसे होते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इनको लगता है कि हाँ ये इसने बोला है तो सच ही बोला है, राइट, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को. तो रेवन भी ऐसा ही था, उसकी कभी तारीफ नहीं हुई, तो रेवन क्या हो गया, खुश हो गया उस अपनी तारीफ सुन के, है ना. He did not see the
who did not see the joke. अब वो उसको मजाक में नहीं ले रहा है कि अरे मजाक कर रहा होगा इस टाइप से, बट forgot that his voice was just a croak. So उसकी आवाज़ कैसी थी वो तो भूल ही गया, जो मेंढक की टरटराने की आवाज़ होती है वैसी सी आवाज़ है उसकी, है ना। तो वो ये चीज़ भूल जाता है और वो जो वर्ड्स उसकी तारीफ़ें कर रहा है उसको वो सच मान लेता है कि हाँ मेरी आवाज़ सच में अच्छी है. He opened his beak in his foolish pride, है ना. और क्या करता है, सोचता है कि अरे भाई मुझे जब फॉक्स ने बोला है कि तुम गाओगे ना तो सब आपको किंग बना मानेंगे, तो सच में मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए. ही ओपन हिज बीक इन हिज फूलिश प्राइड, है ना. प्राइड क्या है यहाँ पे, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, है ना. सुपीरियर फीलिंग आ जाती ना कि हाँ हाँ मेरी आवाज़ सच में अच्छी है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना. गर्व हो रहा है उसको उस चीज़ पे. सो जैसे ही उसने बीक खोली, बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, इतना तो खुद में दिमाग होना चाहिए, है ना, कि हम हमारे हमारे में क्या क्वालिटी, हमें अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में. पर उसको पता है उसकी तो नॉर्मल सी आवाज़ है, फिर भी वो बहुत ही उसको मीन्स फीलिंग ऑफ प्राइड है उसमें उस चीज़ को लेके. एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड. सो व्हाट हैपेंस, एज सून एज द रेवन ओपनड हिज बीक एंड डाउन फेल द मॉर्सल, है ना, वो जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर जाता है. द फॉक्स हैड आइड. आइड मीन्स जिसको वो घूर घूर के देखे जा रहा था, जिस निवाले को आइज से देखना है ना घूरते हुए, तो जिस पे वो नज़रें टिकाए हुए था, मतलब, है ना, जिस पे उसने नज़रें टिकाई हुई थी कि कब ये मुंह खोलेगा, कब रोटी का टुकड़ा नीचे गिरेगा और कब मैं लपक के भाग जाऊंगा वहाँ से, राइट. सो ये चीज़ उसने सोची. तो अब बड़ा वो खुश हो रहा है ना, क्योंकि निवाला वो जो रोटी का टुकड़ा था वो क्या हुआ, नीचे गिरा जैसे उसने बीक खोली, राइट. अब इसमें जो आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, सॉरी, जोक, क्रोक, प्राइड, आइड. ओके, so these are your rhyming words. तो फर्स्ट टू सेंटेंस में एक ए बी बी, देन सी सी डी डी, देन ई ई एफ एफ. दिस टिल नाउ इट इज. एंड द वर्ड आइड का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया, मतलब लगातार घूरते हुए जो देख रहा था, लुक्ड विथ इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ में कि जब ये टुकड़ा गिरेगा तो क्या होगा, राइट. तो ये आइड का मीनिंग है. एंड इट इज़ आई थिंक अ वेरी सिंपल पोम. इट इज़ नॉट एट ऑल any like so many tough words or difficult to understand, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट. और हम पढ़ भी इतने इंटरेस्टिंग वे में रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड वंस यू रीड इट. ओके, नाउ moving towards the last stanza or the fourth stanza of the poem. So this is your first stanza, and what we read here, ha ha laughed the fox, and now you know, है ना. अब वो क्या हंसने लगा, इतनी देर तो वो तारीफ ही कर रहा था और अब उसको अचानक से हंसी आ जाती है ना. होता है ना ऐसे, किसी को कुछ चाहिए, आपको कोई उल्लू बना देता है पहले, देन वो आप हंसने लग जाते हैं कि अरे मैंने तो मजाक में बोला था, तुमने तो सच मान लिया. सो नाउ द फॉक्स इज लाफिंग, नाउ द फॉक्स लाफ्ड, एंड नाउ यू नो, और अब तुम्हें पता है, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. अरे जो भी मैंने ये जो चापलूसी करी थी, जो मैंने तुम्हारी तारीफें की थी, अरे भाई उसको क्या करो, इग्नोर कर दो, भूल जाओ उस चीज़ को कि मैंने क्या बोला, कितने स्वीट वर्ड्स मैंने तुम्हारे सामने रखे, वो सब तुम भूल जाओ. दैट मेक यू ग्लो, जिन वर्ड्स की वजह से तुम्हारी शक्ल पे क्या आ रहा है, ये जो ग्लो आ रहा है. जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके फेस पे भी ग्लो आ जाता है ना. सिमिलर वे ही वॉज नाउ ग्लोइंग. तो द फॉक्स इज सेइंग, अरे इग्नोर दिस, बस उस चीज़ को तुम भूल जाओ. प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, है ना. और प्राइड का मीनिंग हमने पहले देखा था, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, है ना. प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज. अब ये क्या है कि ये जो आपकी प्राइड है, जो तुम जिस चीज़ के लिए तुम सुपीरियोरिटी फील करो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इट इज़, है ना. ये तो मैंने बस ऐसे ही बटरिंग की थी, तुम्हारी तारीफें बस ऐसे ही कर रहा था मैं. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. और मुझे पक्का भरोसा है कि अब जो तुम्हें ये लेसन मिला है, क्या लेसन मिला, कि
तुम बड़े खुश हो रहे थे मेरी तारीफों को, तुम जो सच मान रहे थे, है ना, वट एवर आई वॉज सेइंग यू बिलीव्ड इट, दैट यस माई विंग्स आर, माई feathers, sorry, my feathers are like very beautiful and my voice is really so sweet. ये जो मैंने शब्द बोले और तुमने एक्सेप्ट कर लिए, this is all fake only, because I'm sure this teaching is quite a surprise, and now whatever I said, that is a surprise for you. दिस टीचिंग विच यू गॉट, राइट, ये जो आपको सीख मिली है ये बड़ी सरप्राइजिंग है फॉर यू. वाई? बिकॉज जो रियलिटी जो उसको खुद को दिख रही है, आपको पता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो अच्छी नहीं है, कोई ऐसे ही मुंह पे तारीफ कर देता है, आप एक्सेप्ट कर लो, अंदर आपको कहीं ना कहीं पता होता है ना कि ऐसा तो नहीं है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है, क्यों इतनी मेरी तारीफ की है, राइट. बट जो रेवन था वो उसने क्या किया, इजीली एक्सेप्ट कर लिया, राइट. सो अब फॉक्स ने लास्ट में यही बोला है कि आई एम श्योर तुम्हें इससे बहुत टीचिंग मिली, लेसन मिला है तुम्हें, है ना. और हम कर भी यही रहे हैं कि फेबल एंड फोक टेल्स हमारी यूनिट का नाम है, तो ये भी एक फेबल है, राइट. एंड दिस फेबल इज रिटन बाय जॉन डेला फोंटेन, राइट. सो ये नाम है ऑफ द poet who has written this, to John de la Fontaine. और ये भी एक फोकटेल है, और फोकटेल क्या होती है, एक मॉरल स्टोरी होती है. तो हमें इसमें लेसन मिला, एक टीचिंग मिली है कि क्या हमने सीखा इसमें से, राइट. सो हमने यही सीखा कि हमें क्या करना, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है तो हम भी जानते हैं कि हाँ ऐसा है, और अगर कोई हमें मतलब झूठी बातें बोल के कोई अपना काम निकलवाने के लिए तारीफ करता है, सो डेफिनेटली वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, वी शुड नॉट इग्नोर दैट, राइट. ठीक है, उनके सामने आप मान लो, बट आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों बोला है, राइट. ये है, दिस वॉज अ वेरी ईजी पोएम. एंड so let's think something about कि see different type of birds are there, है ना. और पीकॉक कैसा होता है, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल. आप कोई पीकॉक की तारीफ करे तो पीकॉक को समझ आता है कि हाँ मैं इतना कलरफुल हूँ. किसी भी बर्ड्स की क्या होते हैं ऐसे मीन्स फेदर्स का कलर जो ऐसा नहीं होता, तो मे बी मैं सच ही तारीफ कर रहा होगा. बट क्योंकि रेवन जो था वो एक सिंगल कलर, सेम कलर थ्रू आउट हिज बॉडी, पूरी बॉडी पे एक ही कलर था, तो उसमें इतनी तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं थी. स्टिल फॉक्स ने क्या किया, बड़ी कनिंगली, है ना, चालाकी से, ये चालाकी की उसने कि तारीफ कर दी उसकी, और अपने फ़ायदे के लिए, राइट. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, दैट आपको झूठी तारीफ में और सच्ची तारीफ में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, राइट. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. So hope you understood the poem, and you just read it once so that you are aware about the whole poem, along with the rhyming words and the rhyme scheme as done by us. Okay, at the end words, at the end of every stanza, है ना, हर लाइन के लास्ट का वर्ड हर स्टैंजा में they are forming your rhyming words, टू के पेयर में rhyming words बन रहे हैं. Hope you really like the explanation part of this. Share with your friends, share it, subscribe it, like this, and thank you so much for watching. Namaste to all.